in a brand new topic, that's linear equations and graphs. In today's session, we'll be looking at what gradient are. Let's begin. Let's set our targets first. In today's video, we'll be learning about what basically gradients are, and we'll be looking at different steps to calculate gradient. So let's start. As we discussed in a previous lesson, we talked about slopes, basically that anything around us which is in a slant motion, in a slant position, कोई भी चीज़ जो हमारे आसपास slanting shape में होती है, we call that thing as our slope. For example, अगर हम बात करें about elevators in the malls, आपने अक्सर लिफ्ट्स देखी होंगी जो बिल्कुल slanting shape में जाती हैं ऊपर की तरफ. If you're living in a house, of course you are. If you are living on a second or the third floor, you might be going up to your flat or your house through stairs. तो आपने अक्सर देखा होगा कोई भी चीज़ जो जाती है from the ground to the topmost level, from down to top, those things are known as the slopes. For example, if you go to a supermarket, if you want to take out your trolley from the supermarket, you often see something like this. This is something known as the slope as well. Anything that is slanting is known as the slope. So in mathematics, what are slopes? Slopes are basically lines on the graph. कोई भी ऐसी line ग्राफ के ऊपर जो बिल्कुल टेढ़ी जाती है, उन लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं? हम उनको स्लोप्स कहते हैं. अब अगर मैं पता लगाना कि कोई लाइन कितनी ज़्यादा टेढ़ी है, so what we do is we calculate gradient. Gradient is a measurement. Measurement है किस चीज़ की? कि कोई लाइन कितनी ज़्यादा टेढ़ी है. Let us define a story. We have two slopes here. This is slope number A and this is slope number B. Now, for example, we have two people. One is Mr. A. Let's call him John, or let's call him Albert. He's Albert, okay? Was Albert from A. And we have person number 2, whose name is Ben, from B. Alright, this is Ben. Now, these are two slopes over here, slope number A and slope number B. He was going somewhere. Albert was going somewhere and he had a trolley. He had to move his trolley out from the supermarket. Let's suppose he was in a supermarket and he has to remove his trolley out so that he can take his stuff into his car. So he just walked on the slope here. The slope पे climb किया and then he was able to take his trolley off. Fine. Let's talk about Ben. Ben is going to try. He's a very adventurous person. Now he has gone to the mountains and those mountains are very very steep, बहुत ही ज़्यादा टेढ़े. Think and answer. Will the Ben be able to climb up the mountain very easily? सिर्फ क्या चलने से Ben ऊपर पहुंच जाएगा? Think about it. If you were in front of me, you would say that Albert को कोई मुश्किल नहीं होगी जाने आने में, because इतना ज़्यादा टेढ़ा नहीं है. इतना टेढ़ा है कि वो ऊपर इतना टेढ़ा है कि एल्बर्ट ऊपर चढ़ भी सकता है, उतर भी सकता है. लेकिन बेन के लिए मुश्किल है. बेन के लिए मुश्किल है कि ना ही ऊपर चढ़ सकता है अपने पैरों के थ्रू नॉर्मली, जिस तरह हम चलते हैं, जिस तरह हम लोग उठते हैं, बैठते हैं या आते जाते हैं, और ना ही ये उतर सकता है. चढ़ेगा तो ही विल फील लाइक ही इज़ गोइंग टू बी डाउन, गिरने, ही विल फील लाइक फैलिंग डाउन अगेन. एंड इफ ही इज़ गोइंग टू कम डाउन हियर, ही विल जस्ट स्लिप डाउन. इस पर चढ़ना मुश्किल है और उतरना भी मुश्किल है, बिकॉज दिस माउंटेन इज़ वेरी वेरी स्लैंटिंग. ये माउंटेन की जो पीक है बहुत ही ज़्यादा टेढ़ी है. इफ़ आई से इन मैथमेटिकल वर्ड्स, दिस माउंटेन इज़ वेरी स्टीप. कोई भी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा टेढ़ी होती है उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? वी यूज़ द वर्ड स्टीप. सो वी से दैट दिस slope of Albert is less steep.
ये क्या है हमारे पास, दिस इज लेस स्टीप, वेयर एज दिस इज लेस स्टीप, वेयर एज जिस पे बैंड चढ़ने की प्लानिंग कर रहा है वो क्या है, दैट इज़ द मोस्ट स्टीप, इस पे चढ़ना मुश्किल है. ही कैन नॉट climb up the mountains without ropes or special shoes. He need to have any of these two things. Either he need to have some ropes to climb the mountain, or he needs to have some mountain shoes to go up the mountain. So basically, gradient in mathematics is a way in which we can calculate how much a line is steep. कोई line कितनी ज़्यादा टेढ़ी है. Fine. ओके सो हमारे पास जो वैल्यूज़ बेसिकली आती है ग्रेडियंट की, इट इज़ बेसिकली फ्रॉम 0 to 5 और मोर. लेकिन रूल ये है कि अगर हमारे पास ग्रेडियंट की वैल्यू आ रही है फ्रॉम 0 to 5, इफ़ द वैल्यू ऑफ द ग्रेडियंट, हमने लास्ट पर भी बात पढ़ी थी लास्ट क्लास में कि ग्रेडियंट को हम रिप्रेजेंट करते किसके साथ, विद द लेटर m. अगर ग्रेडियंट की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है फ्रॉम 0 to 5, तो हम कहते हैं कि लाइन ज़्यादा स्टीप है, लाइन ज़्यादा टेढ़ी हो रही है. अगर मैं इसी चीज़ को एक ग्राफ की शक्ल दे दूँ, बहुत ही ज़्यादा टेढ़ी लाइन है, तो इस बात का मतलब है कि हमारी वैल्यू क्या है, ये 5 के करीब है. कोई भी लाइन अगर ये बहुत ही ज़्यादा टेढ़ी होगी तो उसकी वैल्यू 5 के करीब होगी या 5 से अबव होगी. कोई भी लाइन की अगर ग्रेडियंट की वैल्यू आ रही है इफ़ मोर देन 0, मोर देन 5 और 5, दैट मीन्स दैट द लाइन इज़ वेरी वेरी स्टीप. इसी तरीके से अगर हमारे पास वैल्यू इंक्रीज, अब यहाँ इंक्रीज तो नहीं बोलेंगे बिकॉज माई ओवर हियर इन द फर्स्ट पार्ट माई वैल्यू वॉज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to 5, बट इन द सेकेंड पार्ट दिस टाइम माई वैल्यू इज़ डिक्रीजिंग. मुझे पता है कि जब भी हमारी काउंटिंग जाती है टुवर्ड्स द नेगेटिव नंबर्स, तो जितनी ज़्यादा नेगेटिव आपकी वैल्यू होती रहेगी उतनी ज़्यादा छोटी आपकी वैल्यू होती रहेगी. 1 से 2, 2 से 3 आपकी वैल्यू इंक्रीज़ करेगी क्योंकि आपकी ये सारी क्या है आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं. लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ -1, -2, -3, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है. नेगेटिव में जितनी ज़्यादा बड़ी आपकी वैल्यू होती रहेगी उस तरह आपकी वैल्यू गिरती रहेगी. -2 जो है -1 से छोटा है, -3 जो है -2 से भी छोटा है. मतलब यहाँ पे वैल्यूज़ तो बढ़ रही है लेकिन क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज़ हैं तो द वैल्यू इज़ एक्चुअली डिक्रीजिंग. तो अगर आपकी वैल्यू डिक्रीज़ करती है ग्रेडियंट की, आपने एक लाइन के पॉइंट्स लिए और आपने उसका ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लिया. अगर आपके ग्रेडियंट की वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है फ्रॉम 0 to -5, इस बात का मतलब ये है कि आपकी लाइन जो है ज़्यादा स्टीप है. इंक्रीजेस यानी यह आपकी लाइन का जो है स्टीपनेस है. योर लाइन इज़ स्टीप. स्टीप यानी आपकी लाइन बहुत ही ज़्यादा टेढ़ी है. जब वैल्यूज़ इंक्रीज़ करती है फ्रॉम 0 to 5, बेसिकली आपकी लाइन का ग्रेडियंट क्या होता है, इट इज़ पॉजिटिव. हमने लास्ट क्लास में बात पढ़ी थी कि पॉजिटिव ग्रेडियंट बेसिकली क्या होता है, व्हेन योर लाइन गोज़ फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड साइड टू दी राइट हैंड साइड एंड दैट ऑल्सो अपवर्ड्स. एंड व्हेन इज योर ग्राफ ग्रेडियंट नेगेटिव, व्हेन योर ग्राफ लाइन कम्स डाउन फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड साइड टू दी राइट हैंड साइड बट डाउनवर्ड्स. सही? आई होप इट्स क्लियर. After knowing so much about gradient, what is the question? The question is, what is the formula? How can we find this Mr. Gradient? So gradient का find करने का एक formula है, that is gradient is equals to vertical change upon horizontal change. Vertical यानी कोई भी चीज़ जो खड़ी हुई है, anything that is standing, going up, and horizontal is anything that is lying, कोई भी चीज़ जो लेटी हुई है, जो चल रही है, that is known as the horizontal. Vertical and horizontal. Vertical, horizontal.